श्वेता झा और एक बार फिर से हम हाजिर हैं। 3 एंकर्स, मेरी सहयोगी नेहा बाथम और मीनाक्षी कंटपाल। 1 घंटे तक हम आपके साथ होंगे। लॉकडाउन से रिलेटेड तमाम खबरें आपको हम बताएंगे। उसके अलावा भी कई खबरें होंगी, लेकिन आपको बता दें शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। जी हां, लॉकडाउन का लॉक खोलकर देश रफ्तार भरने को तैयार हो गया है। बसें और ट्रेन के बाद अब आप उड़ान की भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही है। मीनाक्षी, हालांकि शुरुआत में 1/3 विमान सेवा ही शुरू होगी। फ्लाइट के ऑपरेशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी हैं। कोरोना काल में आपको एयरपोर्ट का रंग रूप पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई देगा और नेहा, इसका लोगों को बेसब्री से इंतजार भी था। इंतजार तो है, लेकिन कई सारे प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे। आपकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यही वजह है कि तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको विमान का जो समय है उसे 2 घंटा पहले पहुंचना होगा। 1 हैंड बैगेज और 1 चेक इन बैगेज ही अलाउड होगा। ये निर्देश ये भी दिए गए हैं कि ट्रॉली के इस्तेमाल से बचना होगा और साथ ही तमाम तरीके के स्क्रीनिंग टेस्ट से भी गुजरना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, जगह जगह पर सैनिटाइजर रखे जाएंगे। मास्क पहनना तो अनिवार्य है ही, लेकिन फ्लाइट के इस वक्त जो है हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे इसका रुख कर लेते हैं। When we announced the commencement of the Vande Bharat program, on that occasion also I had the members of the senior management of the ministry with me. Let me once again, from the extreme right, Shri Rajiv Bansal, Chairman Managing Director of Air India, Shri Arvind Singh, Chairman of the Airports Authority of India, my colleague and Secretary in the Ministry of Civil Aviation, Shri Pradeep Kharola. On my left, Shri Rakesh Asthana, who is the Chief of BCAS, and of course, the PIO. Now, when we announced the Vande Bharat program on 5th May, we met virtually. We met through a VC. And I think the very fact that we are meeting on the 21st in a physical setting, and this is something I'm doing, I think, for the second time the last 2 or 3 days. I attended, rather addressed a similar press conference. I think this is also a reflection of the fact that we have gained more confidence in terms of normalization of the situation and resumption. Under Vande Bharat mission, as we speak, the numbers of our citizens who were stranded and or in distress outside, those coming back is increasing. The latest figure that I have is that we have brought back more than 20,000 of our citizens from various destinations. Because they have carry our citizens who are normally resident abroad and who needed to travel because they have jobs to do, they have got other professional commitments. We don't want to carry them, but because our flights to the United States, they're coming chock-a-block full, but they're also going full. But some of the countries from which we are bringing our citizens back, they are at this point of time not allowing foreign nationals to come back. And therefore, some of the people wanting to travel back, they may have permanent visas, they may have other residence permits, but since they are not on the passports of the countries, and there are 6 countries in the Gulf, Middle East, some countries in East Asia also. But the larger point I want to make is that we started somewhat cautiously. In the week between 6th and 13th May, the intention was to bring back about 12,800 or so. That was roughly the idea. We have stuck to those figures, but for the second week, which seamlessly was dovetailed into the first week, we ramped up the numbers, made it more than double. And even as we speak, I know my colleague, the CMD Air India and Secretary Civil Aviation, they are already talking in terms of ramping up the number of people to be brought back. Substantial increase in the number of flights that the Air India family, Air Indian Express will be undertaking. But equally, we have also taken up our private carriers, and I'm very happy about that. They had expressed a desire to
participate in the evacuation efforts. And I think it's a tribute to them also that they've stood by us, and they are going to be joining in that effort, which will also enable us to increase the number of flights and ensure that more and more people who are in distress or are stranded outside can come back. But before I move to some other aspects of what we've been doing, I do want to underline that our effort during this Vande Bharat mission was not to bring back everyone who wants to come back. The clear emphasis is on evacuating those of our citizens who are genuinely stranded and in distress abroad. Because if we look at the overall numbers of Indians, I mean, we're a large country, we have a population 1.35 billion, the number of Indians living abroad, both on Indian passports and other, goes into several million. I think more than 25 million according to one estimate. So the idea is not to bring back everyone, only those who are under stress or, who really need to come back. Equally, those of our citizens who have regular jobs outside, which have opened up, they have professional commitments. So the idea is to concentrate on those. But there also the numbers are large, and we are increasing the number of flights and our overall carrying capacity. And this Vande Bharat mission, touch wood, so far has gone very well. As I said, flights are coming back full. I want to compliment Air India and all the other stakeholders, our airports, our DGCA, everyone has worked, our missions in particular, Ministry of External Affairs. Because, these are very difficult circumstances. Locating people, identifying who should travel, under what criteria under priority. These are not easy decisions to make, but it's been doing very well. First phase has given way seamlessly to the second phase and will be increasing as we go along. Another of our activities, which was carried out, I think, with great satisfaction to me and to all the other stakeholders, is that after the suspension of flights on 25th March, one of the major initiatives of the ministry, Mission Lifeline Udan, which has now covered more than 5 lakh kilometers, 500,000 kilometers, and under Lifeline Udan, we have carried a cargo load of around 900 tons to various parts of the country. Now, 1 ton is quite a bit, but 900 tons, and if you see what we've carried, essentially covering COVID-19 related reagents, enzymes, medical equipment, testing kits, PPEs, masks, gloves, medicine, and other accessories, and cargo requisition by state and the governments of the Union Territory. The Lifeline Udan flights have received excellent support from all the stakeholders, the state governments and the other stakeholders. Private scheduled operators have also operated cargo flights on a commercial basis. Similarly, on the request of various agencies, Air India has operated chartered flights to bring 1,444 tons of critical medical supplies from abroad, that is, into India. Air India has also carried about 30 tons of critical medical cargo to foreign countries. Now, the point I want to stress under Lifeline Udan is it represents a very important segment of our activity post the lockdown being declared. Because the lockdown was effective, because it was taken early and in a timely manner, we can today say with a great deal of confidence that we have been able to escape the situation which other countries found themselves in. I mean, for a country of India's size, 1.35 billion people, we are testing what, 100,000 people a day? More than that. And the total number of fatalities is about 3,000 or so. Our recovery rate is doing very well. But when you have a situation like this, what you really need to do is not to look at the total number of cases, but to look at the fatalities. And you have to manage those. Now, the fatalities today, the Indian figure is one of the lowest in the world. It is about 3% or so. And since I'm a member of the group of ministers dealing with this
pandemic chaired by my senior colleague, Dr. Harshvardhan, I keep asking the question, Secretary Civil Aviation is also a member. I say, out of these 3% of fatalities, how many of them are cases where the patients had pre-existing medical conditions or comorbidities, as it's called, and the figure is sometimes termed to be extremely high, 85% or so. So all I'm saying is we have to keep our fingers crossed, but just as it was very important, absolutely essential to have a lockdown early, तो नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी बता रहे थे कि किस तरह से वंदे भारत मिशन के तहत कई लोगों को जो कि वाकई विदेश में फंसे हुए थे, कई ऐसे छात्र थे जो कि स्ट्रेस्ड आउट थे, उनको लाया गया है, ना कि सभी को लाने के लिए ये मिशन था। बढ़ेंगे आगे। कोरोना काल में पूरा देश बदल रहा है, तो फिर एयरपोर्ट इस बदलाव की बयार से कैसे दूर रह सकता है? 25 मई से जब घरेलू उड़ान शुरू होगी तो आपका सफर पहले के मुकाबले बहुत अलग होगा। कई शर्तों के साथ ही उड़ान भरनी होगी और नेहा बहुत जरूरी है कि लोगों तक ये बातें सही प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचे भी कि गाइडलाइंस क्या है। और हम उम्मीद और इंतजार यही कर रहे हैं कि इस पीसी में आगे नागरिक उड्डयन मंत्री बताएंगे कि किस तरीके से दिशा निर्देशों का पालन किया जाना है। देश भर के एयरपोर्ट्स बदलने वाले हैं, क्या क्या नए इंतजाम होंगे देश के अलग अलग एयरपोर्ट से, ये रिपोर्ट देखिए। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 25 तारीख से अब उनके लिए डोमेस्टिक एयरलाइंस से वो लोग हवाई यात्रा कर सकते हैं। मैं आईजीआई एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हूं और किस तरीके से एयरपोर्ट पर तैयारी की जा रही है आज तक आपको एक्सक्लूसिव यहां के विजुअल दिखा रहा है। आप देखना चाहेंगे कि किस तरीके से यहां पर सीआईएसएफ की जो टीम मौजूद है वो पूरी तैयारी कर रही है कि किसी भी पैसेंजर से टच न हो, यानी कि नो टच सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए सीआईएसएफ यहां पर कदम उठा रही है। वहीं आज तक को ये भी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अलग अलग एयरलाइंस को गेट मुहैया करा दिए जाएंगे, जैसे कि ये गेट नंबर 2 आपको दिखाई पड़ रहा है। गेट नंबर 2 किसी दूसरी एयरलाइंस के लिए होगा और गेट नंबर 1 किसी दूसरी एयरलाइंस के लिए होगा। तो इस तरीके से व्यवस्था की जा रही है कि अलग अलग गेट पर किस एयरलाइंस को और कहां पर को उनको लाना है, पैसेंजर किस तरीके से यहां पर इकट्ठे होंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और आपको हम सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे कि लॉकडाउन से पहले कैसे हालात हुआ करते थे और अब जब लॉकडाउन के बाद 25 मई से जो एयरपोर्ट्स खुलेंगे, हवाई जहाज चलना शुरू होगी, उसके बाद कैसी व्यवस्था है। सबसे पहले आप देख लीजिए, जब आप पटना एयरपोर्ट पे आएंगे तो ये आपके जो डिपार्चर गेट है उसके बाहर ही में आप देख लीजिए पैसेंजर्स के लिए किस तरीके से यहाँ मार्किंग की गई है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, ताकि हर यात्री के बीच में तकरीबन 2 से 3 फीट की दूरी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जाए। उसको यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप किस तरीके से मार्किंग की गई है। उसके बाद जब आप डिपार्चर गेट पे आते हैं तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर प्रक्रिया होती है कि सीआईएसएफ के जो यहाँ पे जवान होते हैं उनको आपको टिकट दिखाना होता है, अपना आई कार्ड दिखाना होता है। तो किस तरीके की यहाँ व्यवस्था होगी यहाँ आप देख लीजिए। यहाँ डिपार्चर पर आप जैसे ही आएंगे तो अब कांटेक्ट ना हो लोगों से, उसके लिए यहाँ पे देखिए वेब कैम लगा दिया गया है। ये वेब कैम लगाया है और यहाँ पर आपको अपना जो टिकट हो या फिर आपका आई कार्ड है उसको यहाँ पर आपको दिखाएंगे, तो फिर उसकी तस्वीर अंदर आप देख लीजिए। एक तो यहाँ पे एक मिनट, अंदर जो है यहाँ पे जो सीआईएसएफ के जवान बैठे होंगे उनको इस कैमरे पे सामने दिखाई देगा। भारत सरकार के आदेश के बाद जयपुर एयरपोर्ट भी अराइवल और डिपार्चर के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है कि कोरोना जैसी बीमारी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को अंदर जाने दिया जाए और बाहर लाया जाए। हमारे साथ हैं एयरपोर्ट के डायरेक्टर जगदीप बल्हारा जी भी हैं, साथ में उनसे बातचीत करते रहेंगे। सर, क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है? जैसा कि आप देख रहे हैं, बाहर से हमने डिस्टेंस मार्किंग शुरू कर दी। ये डिस्टेंस मार्किंग है। हाँ जी। इसमें क्या है, पैसेंजर जब गाड़ी से उतरेंगे उसके बाद यहाँ से अंदर आएंगे, ये स्टेप्स बने हुए हैं, तो ऐसे इस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर एक हमारा कंप्यूटर से उस पे वो स्क्रीन पे लगेगा, ये बोर्डिंग पास दिखाएंगे, तो सीआईएसएफ वाले उसको ओके करेंगे, तब वो अंदर जाएंगे। इसके अलावा बात करने के लिए दूर से हमने एक और काउंटर बना रखा है। ये काउंटर बनाया गया है, किसी को बात करना है तो इसके बाहर से बात करेगा, ताकि किसी को कोई शक है, कोई इंक्वायरी है तो वो सीआईएसएफ के पर्सनल यहाँ रहेंगे, वो बात कर सकते हैं। वो बात करें।
लॉकडाउन में कैसे ट्रेन मंजिल तक पहुंचेगी, इसका जरिया कैसे होगा, ये ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता आशुतोष ने मजदूरों को ले जा रही ट्रेन में सफर किया, मजदूरों से बातचीत की। यात्रियों ने बताया कैसे ये सफर उनके लिए जिंदगी का कभी ना भुलाने वाला सफर है। ट्रेन चल पड़ी है, कुछ घंटों में ये मजदूर अपने अपने घर, अपने अपने गांव की ओर बढ़ चलेंगे। आगे का सफर भी पूरा होगा, लेकिन आगे चुनौतियां क्या हैं ये बताएंगे ये लोग। तुम्हें बताइए, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, क्या नाम है आपका और कैसे पहुंचे बिहार तक? जी हम तेलंगाना से आ रहे हैं। हम लोग ट्रक से पहुंचे बिहार में। बॉर्डर पे एक दिन वेट किए और फिर बॉर्डर पे से हम लोग को ट्रेन से अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा जा रहा है। तेलंगाना से बिहार कैसे पहुंचे? ट्रक से पहुंचे। ट्रक से ट्रक में बैठ के कितना पैसा दिए उसके लिए? उसके लिए 2000 रुपये हो लिया। क्या करते थे तेलंगाना में? एयरपोर्ट में मैं जॉब करता था। अच्छा, हाँ। तो फिर क्यों चले वहाँ से? वहाँ से चले, अभी हमारी कंपनी कम चल रही है और घर पे हमारी काम भी कर। यहाँ तक तो अब आगे तो दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सुविधा मिल गई? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। रास्ते का सफर जो था वो कैसा रहा? रास्ते का सफर तो थोड़ा दिक्कत था, मगर आना जरूरी था तो आना ही था। आप बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या करते थे वहाँ पे और अब आगे क्या? तेलंगाना से आए हैं। आगे कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे छपरा बिहार को। तेलंगाना में क्या करते थे? इलेक्ट्रिकल काम करते थे एयरपोर्ट में। अच्छा, आप एयरपोर्ट पे काम करते थे। तो अभी गांव जा रहे हैं, वापस जाएंगे फिर तेलंगाना लॉकडाउन हटने के बाद? जाने को तो मन नहीं है, गाँव ही पे रहेंगे, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है बाहर में। हम लोग का रोजगार यहीं पे मिल जाता तो अच्छा रहता, यहीं पे काम कर देंगे। बहुत चीज़ का कठिनाई होती है बाहर में, इसीलिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम हरियाणा से आ रहे हैं। हरियाणा से आ रहे हैं हम। क्या करते थे हरियाणा में? हरियाणा में प्लम्बिंग काम कर रहे थे। प्लम्बिंग काम कर रहे थे। नंबर थे? जी हाँ। क्यों चले वहाँ से? वहाँ से हम चले सर, वहाँ पर हम लोग खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर बहुत दिक्कत थी। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए थे, कोई खबर नहीं मिल रही थी वहाँ पे, कब जाना है नहीं जाना है। तो हम लोग कुछ दूर पैदल चले, पैदल जाने के बाद में हम लोग ट्रक पर बैठे। ट्रक पर बैठने के बाद में हम लोग पुलिस वहाँ पास आया था कि दिल्ली में आज से सार्वजनिक पार्क खोल दिए गए हैं। दिल्ली वालों के लिए ये रियायत बड़ी खबर है। इस छूट के साथ ही दिल्ली के पार्कों में लोगों की गहमागहमी भी बढ़ गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी भी यहां पर टूटती हुई दिखाई दी। पार्क तो थोड़ा लगा, ऐसा लग रहा कि एक नया जीवन मिला हुआ है। बहुत फर्क है। इनफैक्ट आई मस्ट से कि सोशल डिस्टेंसिंग मच एंड वी आर फीलिंग रियली ग्रेट। दिल्ली को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। केजरीवाल सरकार ने पार्कों को खोलने की इजाजत देकर जैसे दिल्ली वालों को नई आजादी दे दी है। पिछले काफी समय से बंद था लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से लोग एक्सरसाइज यहाँ पर आकर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब स्वरूप बदल गया है और ऐसे में लोग जो है लगातार अब यहाँ पर आना शुरू हो गए। इसके साथ न सिर्फ लोधी गार्डन बल्कि नेहरू पार्क, इसके अलावा तालकटोरा जो गार्डन है वो भी ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग में किस तरह से लोग यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं। तो कई लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि खुल गया, लेकिन जिनको पता लगता है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जो अपना एक तरह से कहा जाए इम्यूनिटी को ठीक करने की, दुरुस्त करने की कवायद है, क्योंकि ऐसे में कोरोना वायरस से तभी लड़ा जा सकता है जब इम्यूनिटी अच्छी हो और तमाम प्रिकॉशंस लिए जाएं। तो दिल्ली के सार्वजनिक पार्क आज से गुलजार हो गए हैं। तंदुरुस्ती के कायल लोगों की बड़ी संख्या पहले ही दिन पार्कों में जुटने लगी है। लोग टहल रहे हैं, फर्राटा भर रहे हैं, खुली हवा में सांस लेने के इस मौके को पूरी तरह जी लेने में लगे हैं। इसी के साथ जीने की आदत डालनी ही पड़ेगी और इसी में ही बेहतरी है सबकी। और बल्कि मैं तो कहता हूं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए और एक्सरसाइज एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। मास्क लगाना बहुत कंपलसरी है और जरूर लगाएंगे, बाकी रनिंग करते हुए हटा देंगे। सैनिटाइजर हाथ में लेके चलेंगे, जैसे कि हाथ टच करते तो सैनिटाइजर लगाना जरूरी है। उसके बाद में एक्सरसाइज के बाद में सैनिटाइज करो, मास्क हटा के रनिंग करनी है, बाकी मास्क लाके चलो, क्योंकि जिंदगी तो बंद कमरों में चलेगी नहीं। हालांकि पार्क खोलने के फैसले के साथ ही दिल्ली सरकार ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। मसलन 65 साल के बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने की अभी भी इजाजत नहीं है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदे आज भी लागू हैं, लेकिन कई जगहों पर इन नियमों की अनदेखी होती भी दिख रही है।
कोरोना से जंग में अब सरकारों ने मान लिया है कि जब तक वैक्सीन का इजाद नहीं हो जाता, इस खतरनाक वायरस के साथ ही जीना होगा। तमाम राज्यों में इसलिए रियायतें दी जा रही हैं। नियमों में नरमी दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर भी नजर आई। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर लंबे अरसे के बाद बाजार और दुकानें खुली। प्रशासन ने शर्तों के साथ छूट दी। ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है, देखिए आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक की रिपोर्ट। लखनऊ में आज से दुकानें खुल रही हैं। कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए जो कि कंटेनमेंट जोन है, हॉटस्पॉट है, बफर जोन है, तो पूरे के पूरे लखनऊ में दुकानें खुलेंगी। हालांकि एक ये भी प्लान हो रहा है कि दाईं तरफ की दुकानें एक दिन, बाईं तरफ की दुकानें दूसरे दिन इसे खोला जाए, लेकिन आज से लगभग ज़्यादातर मार्केट शहर लखनऊ के खुल जाएंगे, रेड जोन में होने के बावजूद ही। आपको मैं दिखा रहा हूं इस वक्त पत्रकारपुरम चौराहे की ये दुकान है जो सुबह खुली है। ये चिकन की दुकान है। चिकन की जो कारीगरी होती है कपड़ों पे, उसकी ये दुकान है जो कि लखनऊ का सबसे मशहूर और लखनऊ का की पहचान मानी जाती है। आप देखिए इस वक्त चिकन की दुकान खुल चुकी है और महीनों के बाद खुली है, यानी कि लॉकडाउन 3 तक ये तमाम दुकानें बंद रहीं और आज इसे खोला गया है। हमारे साथ इस दुकान के जो ओनर हैं वो हैं। ये बताइए कि इतने दिनों के बाद जब खुला है आप लोगों को लग कैसा रहा है? भाई एक तो बहुत ही गुड फील कर रहे हैं और मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है कि अगर यहाँ कुछ आज व्यापार भी नहीं होना है अभी कुछ दिन तक हमारा, ये भी हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ आके जैसा होता ना कि हमें एक स्वर्ग सा आनंद आता है यहाँ बैठ करके। और घर पे बैठे बैठे इतने लंबे समय तक के हम लोग अब इतना ऊब चुके थे कि हम तो ये चाहते हैं हम यहीं पर रहें। अब इस समय तो ऐसा ही फीलिंग है हमारी ये। और क्या तैयारी है आपकी? जी मैं प्रिपेयर्ड हूँ। मैंने ये सैनिटाइजर के लिए भी बुला रखा है एक को, और ये सैनिटाइज करने के लिए हाथ में ये मास्क, कस्टमर्स जो नहीं आते हैं ऐसे कि बिना मास्क के, और ग्लव्स भी रखे हुए हैं कि ग्लव्स का यूज करके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने प्रिपेयर्ड हैं पूरे। तो पूरी सेफ्टी। भारत में बेशक कोरोना के केस 1 लाख को पार कर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोरोना के खिलाफ जंग में हमारा देश बहुत फिसल गया है। दरअसल कुछ ऐसे भी पहलू हैं जो उम्मीद बंधाते हैं और बताते हैं कि बड़े और विकसित देशों की तुलना में हम बेहतर स्थिति में हैं। एक लाख से ज्यादा केस, 3300 से ज्यादा मौत। भारत में कोरोना की बढ़ती रफ्तार की ये आंकड़े आपको डरा सकते हैं, लेकिन ये आंकड़े अपने आप में कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग की पूरी कहानी नहीं कहते। सरकार की माने तो कोरोना केस 1 लाख पार करने के बावजूद इस महामारी के खिलाफ भारत की जंग सही रास्ते पर है। Relatively, we were able to manage the situation well so far, though the challenge still continues. कामयाबी के इस दावे के पीछे आखिर क्या बात है? आइए आंकड़ों के जरिए ही इसकी पड़ताल करते हैं। सरकार के मुताबिक फिलहाल दुनिया में प्रति 1 लाख की आबादी पर 62 कोरोना केस हैं, जबकि भारत में आंकड़ा 7.9 का है। दुनिया में कोरोना से 1 लाख की आबादी पर मौत की दर 4.2% रही है, जबकि भारत में ये दर 0.2% है। मॉर्टेलिटी पर लाख पॉपुलेशन को एनालाइज करें तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जहां 4.2 पीपल पर लाख पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19, इंडिया में उसका स्टेटस अब करीब 0.2 केसेस डेथ्स रिपोर्टेड पर लाख पॉपुलेशन है। आंकड़े की थोड़ी और पड़ताल करने पर कई और चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 9 देशों में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। 7 देशों में तो 10,000 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। अगर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 15 देशों को देखें तो उनकी आबादी 142.6 करोड़ है, लेकिन वहां 36.45 केस हैं और 2.73 लाख मौतें हुई हैं, जबकि 135 करोड़ की आबादी वाले भारत में इनसे काफी कम 1.06 लाख केस और 3303 मौतें हुई हैं। अगर एक और दूसरे वे में हम एनालाइज करना चाहें तो हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या इन 15 देशों के करीब बराबर जनसंख्या होते हुए भी हमने देखा कि अगर हमारी सिमिलर जनसंख्या है
तो इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 34 गुना अधिक केसेस आए हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं तो पाते हैं कि इन 15 देशों में भारत के मुकाबले 83 गुना अधिक डेथ भी वहां पर रिपोर्ट हुई हैं। कोरोना के खिलाफ इस जंग में भारत अगर दूसरे देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में है तो इसकी वजह है टेस्टिंग और इलाज के मोर्चे पर तेजी से कामयाबी। 2 महीने पहले देश में एक दिन में 100 से भी कम टेस्ट की सुविधा थी, लेकिन 18 मई को एक ही दिन में 1 लाख टेस्ट की उपलब्धि हासिल हुई, यानी टेस्टिंग सुविधा में 1000 गुना इजाफा। इसी तरह जनवरी में कोरोना टेस्ट के लिए भारत में सिर्फ 1 लैब था, अब 555 लैब हैं। इस वक्त टोटल 555 लैब एक्टिव हैं, उनमें से 391 लैब्स जो हैं वो ICMR के नेटवर्क में के लैब हैं, 164 लैब ये प्राइवेट सेक्टर में है। मरीज या मौत के आंकड़ों से नहीं तौला जा सकता, लेकिन जब पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैली हो तो महामारी की रफ्तार को धीमी रखने में कामयाब होना अपने आप में बड़ी बात है। मिलन शर्मा, दिल्ली, आज तक। एक वायरस, एक WHO और 3 शक्तिशाली देश, और इसकी वजह से जो टक्कर इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का संक्रमण है और उसके सामने अगर 2 महाशक्तियां इस तरह से टकराती हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हमने पहले भी देखा है किस तरीके से अमेरिका लगातार चीन पर निशाना साधता रहा है। दरअसल WHO पर चीन और अमेरिका की तकरार में रूस भी अब बीच में कूद पड़ा है। उसने ट्रंप की धमकियों की निंदा की है और नसीहत ये दी है कि अमेरिका अपनी हद में रहे। श्वेता, बिल्कुल, और अमेरिका की दादागिरी को खुला चैलेंज देकर पुतिन के उप विदेश मंत्री ने कोरोना कांड को और संगीन बना दिया है। WHO की यह सालाना बैठक मानो दुनिया का सबसे बड़ा दंगल बन गई। इस संगठन के किरदार और व्यवहार पर अमेरिका और चीन की तनातनी में रूस भी कूद पड़ा है, वो भी पूरे ठसक के साथ। मानो वो भी ट्रंप को देख लेने के मूड में है। बिना लाग लपेट के रूस ने अमेरिका के तौर तरीकों और धमकियों की निंदा की। ट्रंप ने WHO से अमेरिका को अलग कर लेने और WHO को दिए जाने वाले सालाना अनुदान को हमेशा के लिए रोक देने की धमकी दी थी। ये बात चीन के हिमायती रूस को भी चुभ गई। अब तक आमतौर पर चुप रहने वाले रूस ने खुद ट्रंप को खरी खरी सुना डाली है। रूस के विदेश मंत्री की तल्खी पर गौर कीजिए। हम कोरोना पर राजनीति के सख्त खिलाफ हैं। हर बात WHO पर नहीं थोपी जा सकती। किसी एक देश के राजनीतिक और भौगोलिक पसंद नापसंद के आधार पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। तो रूस ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है कि बहिष्कार करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये समय ऐसा है जब WHO का सहयोग करने की आवश्यकता है। अब सीधे तौर पर देखिए तो ये WHO का समर्थन है, लेकिन शायद रूस अपनी पुरानी दुश्मनी भूला नहीं है, इसीलिए आज की तारीख में चीन के साथ खड़ा भी दिख रहा है। रूस का रोष ट्रंप पर फूटा है। दरअसल WHO की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग शुरू होने से पहले ही ट्रंप ने उसे चिट्ठी लिखकर बेतरह हड़काया था। उन्होंने 30 दिन में WHO को अपना चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ बदलने की धमकी दी थी। एक तरह से वो कह गए, कोरोना मामले पर निष्पक्ष जांच नहीं हुई और WHO चीन की तरफदारी करता रहा तो वो उसे बर्बाद कर देंगे। I chose not to make a statement today. I'll be giving them a statement sometime in the near future, but I chose not to give a statement. I think they've done a very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुरजोर तरीके से ट्रंप के आरोपों का खंडन किया। 中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能，为有需要的国家提供了大量支持和帮助。 यहाँ तक इस मामले में रूस की चढ़ाई भी तमतमाए ट्रंप को दोबारा तीखा बयान देने पर रोक नहीं पाई। उन्होंने ट्वीट कर इशारों इशारों में शी जिनपिंग पर तगड़ा निशाना साधा है। चीन में कुछ सिरफिरे कोरोना के लिए दुनिया में सबको दोष दे रहे हैं।
बस चीन को पाक साफ बता रहे हैं। इस वायरस ने लाखों लोगों की जान ली है। सच तो ये है कि ये चीन के निकम्मेपन का नतीजा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में मौतें हो रही है। खैर, अमेरिका और चीन के बीच खलबली काफी पहले से है। काफी पहले से ही WHO पर भी निशाना है। लेकिन ये पहली बार हुआ जब 116 देशों ने चीन और WHO की भूमिका पर जांच की बात की। दुनिया भर से उठी आवाजों ने WHO को हिलाकर रख दिया है। दबाव इस हद तक बढ़ा कि WHO को खुद अपने खिलाफ और कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जांच का ऐलान करना पड़ा। चीन जांच के लिए राजी हुआ, लेकिन यहाँ भी एक चाल है। इन सब के बीच मैन ऑन द मिशन डॉक्टर हर्षवर्धन देश में कोरोना को हराने की अलख जगाने के बाद अब वो विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। श्वेता और मीनाक्षी, चीन को जो समर्थन चाहिए था वो आखिरकार उसे मिल ही गया है। WHO बहाने ही सही, लेकिन अमेरिका और रूस आमने सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, और अब अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि उसे एक फ्रंट पर नहीं बल्कि 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी होगी। इतिहास गवाह है कि अमेरिका को रूस से निपटने में अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कभी सीरिया में वॉर पर, कभी ईरान में न्यूक्लियर हथियार पर टकराते ही रहे हैं अमेरिका और रूस। कोल्ड वॉर के वक्त की तो बात ही क्या करनी, तब दुनिया ने अमेरिका और रूस की लड़ाई में जो जो देखा वो अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद भी आज के जमाने में रूस और अमेरिका टकरा ही जाते हैं। वो कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। आज अमेरिका बनाम रूस चीन की दास्तान बहुत हद तक इसी के इर्द गिर्द है। चीन को अमेरिका सुहाता नहीं, रूस से अमेरिका की पुरानी दुश्मनी थी। बस मिल लिए दो यार, और ऐसे हुआ अमेरिका पर पलटवार। वैसे भी दोनों साम्यवादी सोच के देश हैं। आज की चीन रूस को हर तरह की मदद भी देता है, इसलिए चीन पर मुसीबत पड़ी तो रूस आ गया। अब रूस और अमेरिका के बीच मॉडर्न तनातनी का लेखा जोखा भी देख लीजिए। अमेरिका के तमाम पाबंदियों के बाद भी रूस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद करता है। ये भी तू मैं की एक जड़ है। 2011 में सीरिया की सरकार द्वारा नागरिक आंदोलन को कुचलने और उसमें रूस के साथ देने से भी अमेरिका अरसे से खपा रहा है। अमेरिका से मतभेद की वजह से चीन 2012 तक WTA से नहीं जुड़ा था। 2012 में रूस ने अमेरिका की एक एजेंसी को देश निकाला दे दिया था। आरोप थे कि USAID नाम की वो एजेंसी रूस के राजनीतिक प्रक्रियाओं पर असर डाल रही थी। कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध को आप एक ऐसे समय काल के तौर पर देख सकते हैं जहां पर जो डेमोक्रेटिक देश थे और जो कम्युनिस्ट देश थे, यानी पूरब और पश्चिम समझ लीजिए, उनके बीच एक टकराव की स्थिति सी रहती थी। तनाव रहता था, लेकिन इससे बढ़कर ये देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे की जासूसी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा करते थे। अब 2 सुपर पावर उस समय के, यानी अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, उनके बीच में ये टकराव रहता था और लगभग ये समझ लीजिए कि जब तक जो सोवियत यूनियन है वो खंडित नहीं हो गया, तब तक ये शीत युद्ध इन दोनों के बीच चलता रहा। हालांकि अब रूस और अमेरिका के बीच वैसी नफरत नहीं है जैसी किसी दौर में हुआ करती थी। पुतिन और ट्रंप की आपस में बनती भी रही है, लेकिन जब बात जोर दिखाने की होती है तो अब भी कोई किसी से कम नहीं। चीन के साथ मिलकर रूस ने उसी जोर की नई नुमाइश की है। आज तक ब्यूरो। मुंबई की अब बात करेंगे, जहां पर कांदिवली में आज कंफ्यूजन की स्थिति से हजारों मजदूरों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। बिल्कुल, और आपको बता दें कि मुंबई में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2 बार पहले ही ट्रेन को लेकर के मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल हुआ। दरअसल हजारों मजदूरों को मुंबई पुलिस ने बोरीवली स्टेशन के लिए कह दिया आने के लिए, और ये कहा जब मजदूर वहां पर पहुंचेंगे तो उन्हें बताया गया कि 2 ट्रेन कैंसिल हो गई है, इसलिए उन्हें लौटना होगा। मीनाक्षी, हालांकि जब इस तरह की असमंजस की स्थिति बनी तो उसके बाद रेलवे से सवाल भी पूछे गए, तो रेलवे का कहना है कि उन्होंने कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की। तो क्या राज्य सरकार ने मजदूरों को गलत जानकारी दी? किसकी गलती से आखिर मजदूरों के साथ ऐसा हुआ? आज एक बड़ी मिसकम्युनिकेशन के वजह से हजारों की तादाद में जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको तकलीफ झेलनी पड़ी है। इस वक्त हम मुंबई के कांदिवली इलाके में मौजूद है। ये एक पब्लिक ग्राउंड है जहां पर हजारों की तादाद में मजदूरों को बुलाया गया था
दरअसल बोरीवली रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनें चलनी थी आज, और यहाँ पर इन मजदूरों को बुलाकर बीएसटी के बसेस में भरकर बोरीवली रेलवे स्टेशन ले जाना था। जब यहाँ पर मजदूर आए, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए, तो पुलिस ने उनको ये बताया कि 3 में से जो 2 ट्रेनें हैं वो आज रद्द कर दी गई है। मजदूर काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि कई दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस पूरे मामले में जब हमने रेलवे से बात करने की कोशिश की तो रेलवे ने साफ तौर पे कह दिया कि हमने कोई भी शेड्यूल्ड ट्रेन कैंसिल नहीं की है, लेकिन इस पूरे बड़े मिसकम्युनिकेशन के वजह से जो आम लोग हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब कई सारे जो पूरे परिवार है अपने बाल बच्चे बीवियों के साथ और जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ, अब वो वापस घर नहीं जा सकते क्योंकि उनके घर काफी ज्यादा दूर है। बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके वो यहाँ पर आए थे। अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अब यहीं पर रुकेंगे, पूरी रात यहीं पर गुजारेंगे और जितने भी दिन लग जाते हैं वो अब यहीं पर रहेगी क्योंकि वापस वो घर नहीं जा सकते। वो उनमें उनको काफी ज्यादा कठिनाई होगी, काफी ज्यादा पैसे खर्च हो गए, उतने पैसे उनके पास है नहीं। वो अपने पूरे परिवार के साथ इसी ग्राउंड पर रहेंगे जब तक दूसरी ट्रेन की सुविधा ना की जाए। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। चीन सुधरने वाला नहीं है। जी हां, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका चीन अब चाल से अपनी बाज नहीं आ रहा है। पूरी तरह से घिर चुका चीन अब भी अपनी लंबी चौड़ी फौज दिखाकर धौंस जमा रहा है। पहले वायरस से मचाई तबाही, फिर दुनिया को किया गुमराह। WHO जैसी संस्था की आड़ में कोरोना पर पर्दा डालने की कोशिश, लेकिन फिर भी बेनकाब हो गया चीन। दुनिया के 161 देशों ने लामबंदी शुरू की तो ड्रैगन फड़फड़ाने लगा। WHO ने जांच शुरू की तो शी जिनपिंग की धुकधुकी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। कोरोना के जरिए पूरी दुनिया में मौत बांटने वाला चीन अब बुरी तरह फंस गया है। जिन कंपनियों के दम पर चीन ने अर्थव्यवस्था खड़ी की, अपना बड़ा साम्राज्य बनाया, अब उन्हीं में से कई कंपनियों ने बाय बाय करना शुरू कर दिया है। दुनिया में अलग थलग पड़े चीन की छटपटाहट ऐसी कि अब वो अपना आपा भी खोता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि हाल के दिनों में लद्दाख में LAC पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चौतरफा भद्द पिटने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बेचैन है। जिनपिंग की इसी बेचैनी में कम्युनिस्ट फौज ने LAC पर अपने जवानों की तादाद बढ़ा दी है। उसे इस बात की मिर्ची लग गई है कि भारत पेंगोंग त्सो झील के करीब सड़क निर्माण क्यों कर रहा है। चाइना एक ऐसा देश है कि जो लगातार विस्तारवादी नीति पे काम करता है। चाइना लगातार जो है एग्रेसिव और असर्टिव बिहेवियर अपनाता है और अधिक से अधिक टेरिटरीज को एक्वायर करने के लिए उस पर झूठा क्लेम भी करता है। तो इसी वजह से अब आने वाले समय में जैसे जैसे भारत का विकास का कार्य बॉर्डर एरियाज का तेज होगा, वैसे वैसे बहुत संभावना है कि चाइना की तरफ से इस तरह के जो पोटेंशियल जो फेस ऑफ की सिचुएशन बनेगी। चीन चाहे फौज बढ़ा ले या फिर आंखें तरेर ले, लेकिन इस बार उसका ये दांव उल्टा पड़ गया है। दुनिया की सबसे अनुशासित यानी भारतीय फौज ने भी उसी की भाषा में जवाब देने का प्लान तैयार कर लिया है। भारतीय फौज ने भी अपनी टुकड़ी बढ़ा दी है। हालांकि भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक गर्मियों में इस इलाके में सेना की तादाद बढ़ा दी जाती है। बर्फ पिघलने की वजह से पेट्रोलियम का काम बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ती है। देखिए, चाइना का अल्टीमेट एम्बिशन जो है वो है कि 2025 और 30 के बीच में अमेरिका को पूरी दुनिया में और इंडिया को एशियन कॉन्टिनेंट में ग्लोबली चैलेंज कर सके और उनके ऊपर सुपरमेसी और कामयाबी पा सके। दरअसल LAC पर 5 और 6 मई को पेंगोंग त्सो झील के करीब चीन और भारतीय फौज के बीच हिंसक झड़प हुई थी। वजह यह थी कि पेंगोंग त्सो झील के उत्तर में भारत सड़क निर्माण कर रहा था, जिसका चीन लगातार विरोध कर रहा था, लेकिन भारत भी अड़ गया। भारत ने साफ कर दिया कि हमारी तरफ का हिस्सा है, लिहाजा हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत ने दो टूक कह दिया कि जब चीन अपनी तरफ का सड़क निर्माण कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते।
लेकिन ये झड़प इतनी बढ़ गई कि फौज के आला अधिकारियों को दखल देना पड़ा। बाद में सड़क निर्माण के काम को रोक भी दिया गया, जिसके बाद मामला शांत हो गया। लेकिन चीन की चालाकियां अभी कम नहीं हुई। वो लगातार बाहें फड़का रहा है, जिसका जवाब रणनीति के तहत देने में जुट गई है हमारी सेना। इससे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं। पूर्वी लद्दाख के दूसरे क्षेत्रों में हमारी सेना ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। किलेबंदी करके चीन की चालबाजियों पर पानी फेर दिया है। जैसी जगह संवेदनशील हैं, जहां भारतीय फौज की मुस्तैदी चीन की हर चाल को नाकाम बनाने के लिए काफी है। लेकिन जिस तरह चीन दुनिया में अलग थलग हो गया है, ऐसे में हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि उसके मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है और चीन अपने पड़ोसियों पर चढ़ाई का प्लान बना रहा है। ताइवान से लेकर वियतनाम तक चीन की साजिशों से परेशान है। अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है कि चीन अपने विस्तारवादी सोच से बाहर निकले वरना अंजाम बुरा होगा। चीन चालबाज है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। उसकी फितरत है धोखा करना। उसकी फितरत है मौके का नाजायज फायदा उठाना। वो धोखा देकर दुनिया की नजरों में धूल झोंकना चाहता है। ड्रैगन समझता है कि वो बच जाएगा, लेकिन वो भूल जाता है कि जिन हथकंडों से पूरी दुनिया को आंखें दिखाने की कोशिश करता है, उसकी हर चाल, हर हथकंडा समझ में आ रहा है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया संक्रमण रोकने के लिए चार दीवारी में कैद है, सभी सरकारें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगी हैं, तब चीन धोखेबाजी की नई इबारत लिख रहा है। वो ऐसी हरकतें कर रहा है जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसा लग रहा है कि चीन किसी सीक्रेट मिशन में लगा है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बहाने वो अपने सीक्रेट मिशन को अंजाम देना चाहता है। भारत के खिलाफ चीन की साजिशें तो पूरी दुनिया देख चुकी हैं। एलएसी पर हाल की चालबाजियां उसकी मिसाल है। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। लिपू लेक के मुद्दे पर उसकी भूमिका किसी से छिपी नहीं। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने साफ संकेत दिया था कि नेपाल लिपू लेक के पास बन रही सड़क का विरोध चीन की शह पर ही कर रहा है। हालांकि आधिकारिक बयान में चीन ने इसे भारत और नेपाल का मुद्दा बताया था। वो चीन ही है जिसे अमेरिका ने कोरोना का गुनहगार बताया। इससे बौखलाया ड्रैगन अपने सीक्रेट मिशन को अंजाम देने में लग गया। इस शक की कई वजह हैं। अमेरिका ने जब चीन को घेरा तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के समर्थन में आ गया। इससे नाराज चीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आर्थिक घेरेबंदी शुरू कर दी। वहां से होने वाले मांस के आयात पर चीन ने पाबंदी लगा दी। कुछ अन्य चीजों पर भारी व्यापार शुल्क लगाने की भी धमकी दे डाली। चीन ने अपनी साजिशों का चाल जापान के खिलाफ भी चला। 29 मार्च को ड्रैगन ने मिलिट्री ड्रिल की। इससे परेशान होकर जापान ने चीन से सटे मियाकोजिमा द्वीप पर मिसाइलें और 340 सैनिक तैनात कर दिए। चीन ताइवान पर पहले से अपना हक जताता रहा है। अब जब कोरोना काल में उसे मौका मिला है तो वो लगातार दबाव बना रहा है। 29 मार्च को चीन ने ताइवान के एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट भेजे। ताइवान एयरफोर्स ने उन्हें खदेड़ दिया। वहीं WHO से भी ताइवान को अब तक बाहर रखा गया है। आरोप है कि इसके पीछे भी चीन का ही हाथ है। वैसे ताइवान का साफ साफ कहना है कि उसे अलग थलग करने की चीन की नीति कामयाब नहीं होगी। चाइना का अल्टीमेट एम्बिशन जो है
वो है कि 2025 और 30 के बीच में अमेरिका को पूरी दुनिया में और इंडिया को एशियन कॉन्टिनेंट में ग्लोबली चैलेंज कर सके और उनके ऊपर सुपरमेसी और कामयाबी पा सके। कोरोना वायरस का ये जो इस बार पूरी दुनिया में प्रकोप आया है 2020 में, चाहे वो एक्सीडेंट से आया है, इसकी वजह से आज दुनिया के देश की कड़ी निगाह और आक्रोश चाइना के ऊपर आ चुका है। चीन कितनी घिनौनी साजिश कर सकता है, उसका अंदाजा N95 मास्क को लेकर होता है। तो आपको बताते हैं कि कैसे और क्यों चीन इस घिनौनी साजिश पर उतर आया। एक अमेरिकी अखबार का दावा है कि चीन ने जनवरी में दुनिया के कई देशों से N95 मास्क और दूसरे मेडिकल उपकरण खरीद लिए। दिसंबर तक वही चीन कई सामानों को खुद निर्यात करता था, लेकिन जनवरी से उनका निर्यात भी बंद कर दिया ताकि दूसरे देशों में इसकी किल्लत हो जाए। उधर चीन माउंट एवरेस्ट पर चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। उसने वहां 5G नेटवर्क के 3 स्टेशन स्थापित किए हैं। इसे लेकर एक्सपर्ट चिंतित हैं। आशंका जताई जा रही है कि चीन 5G नेटवर्क के जरिए भारत समेत कई पड़ोसी देशों पर नजर रख सकता है। चीन की बदनीयती से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया जानती है कि अपने इन इरादों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक कोशिश कर सकता है। आज तक ब्यूरो।